Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua. With me today you are going to cover a short story, Wo, written by Rashid Jahan, and this falls under Literature and Disability subject of Delhi University. Let us proceed to our video now. Let us know a bit about the story. किसने लिखी थी, कब लिखी थी, कहाँ पब्लिश हुई थी, ये सब चीजें जानना और एग्जाम्स में लिखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वो वॉज पब्लिश्ड posthumously, मतलब कि राइटर की डेथ के बाद पब्लिश हुई थी in 1974 in the anthology शोलाए ज्वाला by रशीद जहान, of course, under the editorship of Dr. Hamida सैदू जफर एंड नईम खान। अगर आप ये नाम याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एटलीस्ट राइटर का नाम और पब्लिशिंग ईयर का नाम जरूर याद रखिए। Let us know something about Rashid Jahan as well. Very knowledgeable, very intelligent lady, Rashid Jahan, an Indian writer and medical doctor, very known for her Urdu literature as well and for sharp social annotations. इन sharp social annotations को तो हम इस स्टोरी में ही जान जाएंगे किस तरीके से उन्होंने सोसाइटी को प्रेजेंट किया है। She wrote short stories and plays and contributed to अंगारे, ये बहुत ही फेमस टेक्स्ट है, कोलेबोरेशन में लिखा गया है, a collection of unconventional short stories written in collaboration with Sajjad Zahir, Ahmad Ali and Muhammad Zafar. So let us know now about the story Wo. This is the story of a woman who sells her body, of course, prostitute है, who has lost all the luster over time. वक्त के साथ उनकी ब्यूटी खत्म होती चली गई, वक्त के साथ हर इंसान की ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, नो डाउट अबाउट दैट. शी इज अ लेप्रेसी पेशेंट बिकॉज ऑफ विच पीपल नाउ हेट हर. अब लोग उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, नोबडी इवन लाइक्स टू टॉक टू हर. सो द स्टोरी बिगिन विद द नरेटर साफिया. हमारी स्टोरी की नरेटर का जो नाम है वो है साफिया. फर्स्ट पर्सन में है ये स्टोरी, वही बताती है किस तरीके से वो हमारी इस कैरेक्टर से मिली, जिनको नाम दिया गया है, वो कोई नाम नहीं दिया गया क्योंकि कोई पहचान नहीं है उनकी. So Safia is reflecting in the story on her past, where she introduces a mysterious woman whose name we would never know. वो यही है उनका नाम, but who is referred only as वो, और इंग्लिश में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो we will call it that one. ऐसे कहकर ये एड्रेस किया गया इंग्लिश ट्रांसलेशंस में और हिंदी में वो कहकर. So throughout the story thereby giving its title वो. पूरी स्टोरी अपना टाइटल हमेशा जस्टिफाई करती रहती है. लेट अस रीड दी ओरिजिनल हिंदी ट्रांसलेशन. ओरिजिनली तो उर्दू में लिखी गई है, लेकिन मुझे उर्दू नहीं आती तो मैं यहाँ पर उर्दू में नहीं लिख पाई, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन एग्जैक्ट यही है. उसके बाद हम इनिशियल इंग्लिश लाइंस भी पढ़ेंगे जिससे कि आपको स्टोरी का बेसिक बहुत अच्छे से पता चल जाएगा. लेट अस रीड द हिंदी वन. मेरी उससे शिफा खाने मतलब डिस्पेंसरी में मुलाकात हुई. वो भी दवा लेने गई थी और मैं भी. उसको देखकर सब औरतें बचने लगी. डॉक्टर ने भी अपनी कराहत, अपनी हेट्रेड का इजहार कर दिया आंखें बंद करके. घिन तो मुझको भी आई, लेकिन मैंने किसी न किसी तरह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया. वो भी मुस्कुराई, कम से कम कोशिश तो की. उसकी नाक सिरे से गायब थी और दो बड़े बड़े लाल लाल से छेद उसकी नाक की जगह पर थे. एक आंख भी न थी और दूसरी से भी बगैर गर्दन के सहारे न देख सकती थी. Let us read the English one now. I met her in a dispensary. She also went to get medicine and I too. Seeing her, all the women started running away. The doctor also expressed his groan with his eyes closed. I felt disgusted too, but I smiled looking at her. In some way or the other, she smiled too. Her nose was missing from the tip and two big red holes were in place of nose. She had no eyes and could not see without the support of her neck with the other eye. So this was the beginning जिसमें हमें जानने को मिलता है the physical appearance of that lady and how the society treats her. Now let us see what happens further. We will not go word to word, but we will try to get the gist of the story with the help of few important lines.
Let us read it and understand it. And then, after a while, I had an encounter with her at the window of the dispensary. She asked me, "Where are you from?" I have given my address. She went away with the medicine, and compounder started telling me without asking me. She's a crook and prostitute. The rot is dying. Now it has come for the treatment. The doctor writes the prescription. She should be thrown out. अब देखिए कंपाउंडर का क्या व्यू पॉइंट है। एक ऐसा पर्सन, कंपाउंडर और डॉक्टर, ये तो एक ऐसे इंसान होने चाहिए जिनको बिल्कुल नॉन बायस्ड होना चाहिए सोसाइटी के लिए। एटलीस्ट फिजिकल अपीयरेंस से तो इम्पैक्टेड नहीं होना चाहिए। लेकिन कंपाउंडर के व्यू पॉइंट्स देखिए, उनका प्रोफेशन प्रोस्टिट्यूट रहा होगा कभी, बट दैट डज नॉट मेक हर क्रुक। उनकी अपीयरेंस की वजह से सब लोग बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि शी हैज डन सम क्राइम, शी इज अ क्रिमिनल। और वो चाहते हैं कि डॉक्टर शुड थ्रो हर आउट। पता नहीं डॉक्टर इस लेडी को ट्रीट क्यों करते हैं। लेट अस नो अ बिट अबाउट साफिया नाउ। साफिया एक recent graduate हैं from some university and currently working at girls' school. Thinking about her future, she believes that it is like a garden full of blooming flowers. दो अलग-अलग लोगों की contrasted life देखिए. Look at the life of that so-called prostitute and look at the life of Safia. साफिया की लाइफ बिल्कुल हरी भरी है, फूलों से भरी हुई है। फॉर हर, देखते हैं साफिया के लिए लाइफ की क्या डेफिनेशन है, बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हीं की जबान में। लाइफ was a stream of moonlit night, rippling gently here, cascading into a waterfall here. लाइफ बिल्कुल ऐसी है जैसे चांद की चांदनी। तो कितनी खूबसूरत लाइफ बयान की गई है साफिया की, और कैसी लाइफ दिखाई गई है हमें वो की। So in contrast to the gloomy ambience and mood at the hospital, at the dispensary, the next scene, this scene takes us to the promising, beautiful life of the narrator Safia. हमारी साफिया वो की तरफ देखकर मुस्कुराई भी थी, अपना एड्रेस भी दिया था, तो वो थोड़ी सी एंकरेज हो गई, क्योंकि बाकी सोसाइटी उन्हें हमेशा शन करती आई थी, बाकी सोसाइटी उन्हें हमेशा डिस्कार्ड करती आई थी। उनकी लाइफ में शायद एक ही पर्सन आई, साफिया, जो मुस्कुराई उन्हें देखकर, तो वो साफिया से मिलने आ जाती हैं उनके वर्किंग प्लेस पर। Seeing her, Safia suddenly stands up and asks her to sit down. साफिया एकदम से खड़ी हो जाती है और उन्हें बैठने को बोलती हैं। खड़ी तो साफिया हुई थी चौंक कर, लेकिन शायद वो को लगा कि मुझे भी कोई रिस्पेक्ट करता है मेरे आने पर खड़ा होकर। She also says that it was a kind of an involuntary response. साफिया ने कहा भी कि involuntary response है। हम लीडर्स को बताया कि उन्हें भी नहीं पता वो अचानक से क्यों खड़ी हो गई। Which again forces us to think if she really wanted her to sit down. क्या वो सच में चाहती थी कि वो साफिया वो को बैठने को बोले? The woman also hesitates before sitting, maybe because she has never been given such conduct before. ऐसा behavior उन्हें किसी और से कभी नहीं मिला है। लोग तो उन्हें देखते ही भाग जाते थे। पहली इंसान जो उन्हें देखकर कह रही है बैठिए। She has brought a jasmine flower for Safia, and instead of giving it to her directly, she places it on the table. टेबल पर रख देती हैं, डायरेक्टली अपने हाथ से नहीं देती हैं। शायद ऐसे एक्सपीरियंसेस भी उन्हें हुए हैं कि उनके हाथ से कोई कुछ चीज लेना ना चाहता हो, उनके हाथ को, उनकी बॉडी को डायरेक्टली टच ना करना चाहता हो, तो उन्हें वो फूल टेबल पर रख दिए। ऑफ कोर्स वो फूल साफिया के लिए ही लाई थी। साफिया भी बहुत दिल की अच्छी लेडी हैं, लेकिन सोसाइटल प्रेशर में उनको भी आखिर डिस्कार्ड ही करना है इस लेडी को। Although Safia accepts the flower and picks it up, she feels deeply repulsed. There is no conversation established between them. दोनों कोई बात नहीं करती हैं एक दूसरे से। As Safia tucks the flower into her hair, the woman smiles and leaves immediately. तो वो शायद सिर्फ एक ह्यूमन जेस्चर के लिए आई थी यहाँ पर, वो लेडी, और उन्हें एटलीस्ट वो ह्यूमन जेस्चर साफिया की फॉर्म में मिला। कोई तो ऐसा पर्सन है जिन्होंने उसको डिस्कार्ड नहीं किया, जिन्होंने उसको देखकर भागना शुरू नहीं किया, जिन्होंने उसको देखकर ऐसी शक्ल नहीं बनाई कि हमें आपसे घिन आ रही है। So this makes us ponder about the pain and the burdened life of this disfigured women की कैसी लाइफ वो जी रही होंगी। इमेजिन करिए, हमें देखकर हर कोई भागना शुरू कर दे तो कैसा हमें फील होगा, वैसा इन लेडी को भी फील होता होगा जिनको नाम दिया गया है वो।
नाउ शी स्टार्टेड कमिंग डेली, क्योंकि वो भी किसी एक ऐसे इंसान के लिए तरस रही थी जो कि उनको देखकर कम से कम बैठने को तो बोलता है। लेकिन साफिया पर भी बहुत सोसाइटल प्रेशर है, पूरे स्टाफ का, बाकी टीचर्स का, प्रिंसिपल का, कि क्यों ऐसी लेडी को यहाँ पर आने देती हो। Every day, Safia thinks of asking her not to come to the school, but all she can say is, please sit down. So whenever the women enters the staff room, other teachers leave the room immediately. Her gaze, her one look makes Safia quite uncomfortable. Safia भी uncomfortable होती थी. बहुत सारे questions Safia के दिमाग में आते थे. And she shivers at the thought whether the women had been like this before she was struck by the disease. तो उनको ऐसा लगता है कि क्या ये फीमेल हमेशा से ऐसी ही रही हैं, क्या अपने डिसीज के बाद ऐसी हुई हैं। उनकी लाइफ के बारे में साफिया बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन कभी पूछ नहीं पाई। हम रीडर्स के माइंड में भी यही क्वेश्चंस हमेशा चलते रहते हैं, और हम भी सोचते हैं कि साफिया पूछेंगी तो हमें भी पता चलेगा, लेकिन साफिया ही नहीं पूछ पाती हैं तो हमें भी नहीं पता चलता है। साफिया ऑल्सो वंडर्स इफ शी कुड नॉट सी दैट एवरीवन एल्स डिस्पाइसेस हर। साफिया उनसे ये भी पूछना चाहती है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है कि हर कोई तुम्हें डिस्कार्ड करता है, हर कोई तुम्हें देखकर भाग जाता है। एंड इफ शी नोज, और अगर जानती हैं तो क्यों आती हैं स्कूल में डेली। बहुत सारे सवाल साफिया के मन में थे जो कि साफिया नहीं पूछ पाई कभी भी, आउट ऑफ कर्टसी। तो देखते हैं क्या क्या सवाल साफिया के मन में चले। साफिया is stormed by thousands of questions like, why does she stare at me like this? Who is she? What had she been? Where did she come from? How had she become like this? What does she feel when she comes to the school? Pain or relief? Safia is extremely curious to know what her story is like, but never ever dares to ask. कभी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती है। Let us see what happens by the end. One day while leaving the school, the women, वो, rubs her fingers on the wall after blowing her nose. स्कूल की जो स्वीपर थी नसीबन, उन्होंने वो को ये करते हुए देख लिया। The old sweeper Nasiban leaves her work at once after seeing this and hits her with the slate in her hand. उस टाइम पर ये स्लेट्स हुआ करती थी जिनको तख्ती कहते थे, और ये एक छोटा वर्जन ही होती है बैट का। क्रिकेट बैट जो होता है उसी का एक बहुत छोटा वर्जन होती है, और इससे भी अगर पिटाई की जाए तो अच्छी खासी चोट लगती है। इसी से उन्होंने वो को पीटना शुरू कर दिया। She forgets that she's in school and starts cursing her. नसीबन की बात करी मैं। She thrashes her ruthlessly. बिल्कुल बुरी तरह उनको मारना शुरू कर देती हैं। साफिया runs to intervene and pulls नसीबन aside. नसीबन को एक तरफ करती हैं और वो को एक तरफ करती हैं। She also shouts at her for beating the women mercilessly, कि इतनी बुरी तरह कोई किसी की पिटाई करता है। To which she replies, देखते हैं नसीबन क्या रिप्लाई करती है। नसीबन रिप्लाई करती है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये सब तुम्हारी वजह से कि ऐसी एक औरत हमारे स्कूल में आती है। यू आर दी वन हु एंकरेज्ड हर। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, यू आर दी वन हु एंकरेज्ड हर। ऐसा भी क्या क्राइम कर दिया था साफिया ने? इज साफिया बीइंग ब्लेम्ड फॉर बीइंग ह्यूमन? ये हम लोगों को यहाँ सोचने को मजबूर करता है कि साफिया तो सिर्फ एक ऐसी लेडी से बात कर रही थी जिससे कोई और बात नहीं करता। कोई और क्राइम तो था नहीं उस लेडी का। वो डिसफिगर्ड थी, वो एक ऐसे प्रोफेशन से थी जिनको कोई लाइक नहीं करता ऑफ कोर्स, लेकिन अपनी मर्जी से उस प्रोफेशन को भी कोई चूज नहीं करता। अपनी मर्जी से कोई डिसफिगर होना भी नहीं चाहता। तो वाई साफिया इज बीइंग ब्लेम्ड? साफिया इज बीइंग ब्लेम्ड फॉर बीइंग अ ह्यूमन। साफिया उस फीमेल को हेल्प करती हैं उठने में, बाहर तक जाने में। साफिया हेल्प्स दैट women get up and accompanies her to the gate. Her forehead is bleeding but she does not seem to take a notice of it. उनका forehead bleed कर रहा है लेकिन वो बिल्कुल notice भी नहीं करती। She hides her face in her hands and a moment later says only these last words, now you know everything. अब तो सब पता चल गया तुम्हें, और सिर्फ इतना कहकर वहां से चली जाती हैं। तो लेट अस सी द लास्ट फ्यू वर्ड्स आल्सो इन हिंदी। हमने स्टोरी की शुरुआत ही हिंदी से की थी, तो अब हिंदी में देख लेते हैं किस तरीके से स्टोरी का अंत हुआ। मैंने झुककर उसको उठाया, वो फूट फूट कर रो रही थी। मैं पकड़कर उसको फाटक की तरफ ले गई, उसकी कनपटी से खून बह रहा था। गालिबन वो भी उसे ना मालूम हुआ था। रोते में मुंह छुपाकर गनगनाई, अब तो आपको मालूम हो गया, और चली गई।
ये लेडी जो थी एक आउटकास्ट थी हमारी सोसाइटी के लिए, और हमारी सोसाइटी की एक आदत रही है कि जो भी डिसफिगर्ड होता है किसी भी वजह से, हम वो वजह जानने की, उस पर्सन की परेशानी, उस पर्सन की सिचुएशन जानने की कोशिश करने के बजाय उस पर्सन को डिस्कार्ड करना शुरू कर देते हैं. So she has been an outcast and has been enduring insult and violence at the hands of the numerous people for a long time. बहुत ही लंबे वक्त से शायद वो ये सब इंसल्ट झेल रही होंगी. Her identity is determined solely by her disease and her situation of having been a prostitute. उनकी सिचुएशन को हम लोग मान लेते हैं कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, शायद अपनी बॉडी सेल करती थी, इसी वजह से उनके ऐसे कर्मास की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ. तो अगर गॉड ने ही ऐसा किया तो हम भी डिस्कार्ड ही करेंगे. शी इज stigmatized and marginalized by society and never has the courage to tell her side of the story. जब उन्हें पता है कि सबने उन्हें डिस्कार्ड ही करना है, क्या करेंगी अपनी स्टोरी किसी को बताकर. In the end, I will say disability in Rashid Jahan's Wo is characterized very sharply. बहुत ही शार्प, बहुत ही तीखे तरीके से स्टोरी को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने. सोसाइटी के व्यू पॉइंट्स को देखिए कितने अच्छे से दिखाया है कि हर कोई डिस्कार्ड ही कर रहा है. जो एक पर्सन थोड़ी बहुत सिंपैथी उनके साथ रख भी रही है, उस पर्सन को भी डिस्कार्ड किया जा रहा है. So Jahan, the writer, has purposely not given a name and face to the women who has lost an eye and is in a very inferior state due to a venereal ailment. एक sexual ailment की वजह से उनके साथ ऐसा हो गया, लेकिन लोग कुछ भी जानना नहीं चाहते, कोई रीजन जानना नहीं चाहते. Lack of understanding, I will call it. Lack of understanding and lack of awareness regarding the cause of disabilities and the resulting characteristic is a key factor in the stigma experienced by people with disabilities. Misconceptions about the cause of disabilities often result from cultural or religious beliefs. हमारे शास्त्रों में भी तो हमेशा दिखाया जाता है कि जो बहुत नेगेटिव पर्सन है, कनिंग पर्सन है, वो हमेशा डिसेबल है. जैसे कि रामायणा में मंथरा या फिर महाभारता में शकुनी. तो कोई भी पर्सन डिसेबल होता है तो हम उसको नेगेटिव एट्रीब्यूट्स देना शुरू कर देते हैं. तो डिसेबिलिटी को हम क्या मानते हैं? डिसेबिलिटी इज ऑफन ब्लेम्ड ऑन द मिसडीड्स ऑफ एंसेस्टर्स, मिसडीड्स ऑफ पास्ट बर्थ. जरूर पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, जरूर तुम्हारे पूर्वजों के कुछ बुरे कर्म होंगे जिसकी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है. सो दैट वन, दिस लेडी वो. This lady Wo is devoid of any identity. Writer ने भी तो नाम नहीं दिया उन्हें. It seems that Jahan, the writer, draws no line in showing us the cruel face of the society, just like Safia. The readers also remain inquisitive about the women and her story. हमें भी बहुत curiosity होती है ना जानने की कि ऐसा क्या हो गया. But all we get to see is how she has been discriminated and disrespected by the so-called able people just because she does not look so-called perfect. वो बाकी लोगों की जैसी नहीं है ना, दो आंखें नहीं है, वैसी नोज नहीं है, और उस तरीके से देख नहीं पाती है, उस तरीके से चल नहीं पाती है, तो प्रॉब्लमैटिक है. शी इज considered to be stricken with a severe disease which is considered to be the outcome of some bad karmas and bad profession maybe which is considered by the society की prostitution में थी तो अपनी मर्जी से उन्होंने ये चुना होगा. एक respectable profession तो नहीं है ये, उसी के outcomes हैं कि she is disabled today. लेट अस सी डिसेबिलिटी को हम लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं पूरी सोसाइटी. डिसेबिलिटी हैज बीन seen since ages from different viewpoints. लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, बहुत सारे कल्चरल, बहुत सारे रीजनल और रिलीजियस बिलीव्स होते हैं. prejudice, stigma and shame are day to day shameful experience of disabled people. लोग उनको ऐसे ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, अरे ये कहाँ से आ गए, हटो यहाँ से, इनको दूर भगाओ या खुद ही दूर हो जाओ, ऐसा फील देते हैं उन लोगों को. सो ईदर they are looked upon with an eye of hatred or bad luck. Labeling of persons with disability leads to a biased attitude, thus pushing them to the boundaries and social elimination. वो लोग अपने आप को फील करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमें तो सोशली एलिमिनेट कर दिया, और एक पॉइंट पर आकर उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं बिकॉज दे नो कि इट इज it is quite impossible to change the viewpoints of the whole society.
I hope you completely got what the writer wants to say in this video. She is telling us about the impact of disability. You may join the classes to cover all the topics in detail. The link to get connected to us for admission purpose has been given in description. Thanks a lot for watching. Best of luck for exam and please do not forget to share and subscribe the channel.